ایس او پیز کی خلاف ورزی پر چھاپے، کئی مارکیٹ سیل۔ اسلام آباد میں ملک کے سب سے بڑے یوٹیلیٹی سٹورز کو تالے لگ گئے۔ راولپنڈی میں 3 مارکیٹس کے شٹر گرا دیے گئے، متعدد دکاندار زیر حراست۔ ملتان اور گجرانوالہ میں بھی دکانیں بند کرا دی گئیں۔ فیصل آباد میں دکانیں بند، ماسک نہ پہننے پر بائکس کے ٹائروں کی ہوا نکال دی گئی۔ لاہور میں ایس او پیز پر اجلاس، ہلڑ بازی کا شکار، تاجروں کا حکومت پر سیاست کرنے کا الزام۔ لاہور میں بغیر ماسک ڈرائیونگ پر چالان کرنے کا اعلان۔ سی ٹی او اور ڈی سی او لاہور نے 8 مشترکہ ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ وارڈنز بھی ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں گے۔ سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے کار میں 1 سے زائد شخص سوار ہونے پر ماسک لازمی ہوگا۔ دوسری طرف پی ایچ اے نے کل سے لاہور کے پارک کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماسک اور گلوز کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ بچوں کے جھولے اور کھیلنے کے مقامات بند رہیں گے۔ برطانوی ایئر لائن انڈسٹری کو مزید مشکلات سے بچانے کے لیے حکومت نے پالیسی تبدیل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ بیرون ممالک سے آنے والوں کے لیے 14 دن قرنطینہ کی پابندی نرم ہونے کے امکانات، کاروباری افراد کو خصوصی رعایت ملے گی۔ کورونا وائرس سے برطانیہ کی ہاؤسنگ انڈسٹری بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ پراپرٹی کے کاروبار میں 50 سے 60% کمی ریکارڈ۔ 11 سال میں پہلی بار صورتحال بدترین سطح پر پہنچ گئی۔ ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے مسلم لیگ نون مڈلینڈز آزاد کشمیر کے صدر راجہ امجد خان کو کوآرڈینیٹر برائے اوورسیز کشمیری تعینات کر دیا۔ کہتے ہیں اوورسیز ہم وطنوں کی دن رات خدمت کریں گے۔ اوورسیز کشمیری کمیونٹی نے خوشی کا اظہار مسرت کیا۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی پریس کانفرنس، کہا برطانیہ آنے والے تمام یورپی باشندوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والوں کو ہر صورت قرنطینہ ہونا ہوگا۔ کورونا سے بے روزگار ہونے والوں کی امداد جاری رکھنے کا اعلان۔ کورونا کو شکست دینے والے برطانوی شہزادہ چارلز پرعزم کہتے ہیں خوش قسمتی سے ان کی بیماری کی نوعیت سنگین نہ تھی۔ لوگوں کا احساس ہو گیا ہے کہ فطرت میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے یو اے ای میں مقیم پاکستانی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے سابق صدر راجہ محمد سرفراز کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں پاکستانی سفارت خانہ اور کونسلیٹ کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کوششیں کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کو پبلک پروسیکیوشن میں تعینات کرنے کا شاہی فرمان جاری۔ 53 خواتین لیفٹیننٹ کے عہدے پر پبلک پروسیکیوشن کے طور پر تعینات۔ پراسرار غاریں، قدیم ترین گرجا گھر۔ ترکی کا علاقہ کھپاڈوکیا اپنی تاریخ اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ گرجا گھر کی چھت اور دیواروں پر بنی پرانی تصاویر نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں رافع اعوان۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ ناظرین، صورتحال دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستانی ملک کو دوبارہ لاک ڈاؤن کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ جی ہاں، بازاروں، دکانوں میں ایس او پیز کی خلاف ورزیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی دیکھ کر انتظامیہ سے بھی رہا نہیں گیا۔ چھاپا مار کارروائیاں کرتے ہوئے پنجاب کی متعدد مارکیٹس کو تالے لگا دیے۔ عوام کو نرمی راس نہ آئی۔ کورونا وائرس سے متعلق بار بار الرٹ اور انتباہ کے باوجود بازاروں میں ایس او پیز کی خلاف ورزیاں جاری۔ مجبوراً حکومت ایکشن لینے پر مجبور ہو گئی۔ ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر اسلام آباد میں پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیلیٹی سٹور سیل کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن شروع کر دیا گیا۔ صادق آباد، راجہ بازار، کمرشل مارکیٹ میں انتظامیہ نے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر درجنوں دکانداروں کو حراست میں لے لیا۔ سماجی فاصلے کی خلاف ورزی پر 3 مارکیٹ سیل کر دی گئی۔
गईं। लाहौर के इलाके टाउनशिप बाजार में SOPs पर अमल दरामद न होने पर 24 दुकानें सील कर दी गईं। गुजरांवाला में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद न करने पर शहर की बड़ी मार्केट सेटेलाइट टाउन को बंद करवा दिया गया। अंदरून शहर में क्लॉथ मार्केट, सराफा बाजार, सब्जी मंडी, मछली बाजार, रेल बाजार, दाल बाजार समेत दीगर बाजार भी बंद करवा दिए गए। मार्केट्स की तमाम छोटी बड़ी दुकानों को बंद करवा के ताले लगवा दिए गए। मुल्तान में भी SOPs के खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया इन एक्शन है। चौक बाजार, हुसैन आगाही, काला मंडी और बोहड़ गेट मार्केट्स को बंद कर दिया गया। तमाम मार्केट्स में शहरियों का रश बगैर हिफाजती तदाबीर के काम जारी था। उधर फैसलाबाद में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ इंतजामिया और पुलिस ने अनोखा एक्शन किया। मास्क न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के टायर्स की हवा निकाल दी गई। राहगीरों को खड़ा करने की सजा भी दी गई। बस बहुत हो गया, हुकूमत ने सख्त वार्निंग दे दी है। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा है कि SOPs पर अमल न हुआ तो एक दुकान नहीं पूरा बाजार बंद होगा। SOPs पर बुलाया गया इजलास हुल्लड़बाजी का शिकार हो गया। उधर पंजाब हुकूमत ने बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान का फैसला किया है। लाहौर में SOPs पर इजलास हुल्लड़बाजी का शिकार ताजरों ने हुकूमत पर कारोबार में सियासत करने का इल्जाम आयद कर दिया। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल ने टाउन हॉल में कोरोना SOPs पर बुलाए गए इजलास के शुरा को मुखातिब करते हुए कहा कि कोरोना SOPs को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। मार्केट्स को खोलने से पहले आपने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां असलम इकबाल ने हुकूमत की जानिब से सख्त वार्निंग जारी की। कहा कि ताजरों और आवाम ने मस्बत रवैया न दिखाया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। SOPs पर अमल ना हुआ तो एक दुकान नहीं पूरा बाजार बंद होगा। अगर किसी बाजार के अंदर भी वायलेशन पाई गई SOPs के हवाले से, किसी दुकान एक को बंद नहीं किया जाएगा, उस पूरे बाजार को बंद किया जाएगा। ताजर तंजीमों ने, दुकानदारों ने, लोगों ने अपना मस्बत रवैया ना दिखाया तो फिर हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो आपने की है फिर उसके मुताबिक वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। सूबाई वजीर का कहना था कि तमाम बाजारों में सरप्राइज विजिट होंगे। दुकान के अंदर मास्क फराहम करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। उधर पंजाब हुकूमत ने शहरियों को बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान थमाने का फैसला किया है। मोटरसाइकिल और गाड़ी पर मास्क न पहनने वालों को चालान टिकट जारी होंगे। इस हवाले से CTO और DC लाहौर ने 8 मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी हैं। खुसूसी टीमों के अलावा शहर भर में तमाम वार्डन्स भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। पाकिस्तान ने केसेस में चीन को पीछे छोड़ दिया है। केसेस की तादाद 84,000 से तजावुज़ कर गई है और तिब्बी अमला सबसे ज़्यादा वायरस से मुतासर है। सर्विसेज अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मकसूद का कोरोना के बायस इंतकाल हो गया। मुत्तहदा रहनुमा फैसल सब्जवारी, उनकी अहलिया, उनके वालिदैन और 2 बेटियों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान कोरोना केसेस में चीन से भी आगे निकल गया। आवाम की बेएहतियाती और SOPs की खिलाफ वर्जियों के बायस हर गुजरता दिन गंभीर सूरत हाल इख्तियार करने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 84,000 से तजावुज कर चुकी है, जो चीन में होने वाले केसेस से भी ज्यादा है। 83,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हुए, ताहम अब चीन में नए केसेस और हलाकतें न होने के बराबर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 4,688 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 82 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुल्क में मजमूई अमवात 1,770 हो चुकी हैं। पंजाब और सिंध में कोरोना केसेस में मुसलसल और खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। सिंध में 32,910 जबकि पंजाब में 31,104 केसेस सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 11,373 और बलूचिस्तान में 5,224 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। अब तक 30,128 अफराद मोहलिक वायरस से सेहतियाब हुए। फ्रंट लाइन पर काम करने वाला तिब्बी अमला वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। सर्विसेज अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मकसूद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। लाहौर के चिल्ड्रन और जिन्ना अस्पताल में मजीद 29 डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोना वायरस का शिकार हो गए। गोजरा में मजीद 3 डॉक्टरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तियार समेत 4 सीनियर डॉक्टर्स में भी कोरोना की तस्दीक हो गई है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी, उनकी अहलिया, वालिदैन और 2 बेटियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के एक और रुकन जमशेद महमद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि पाकिस्तान ब्लेयर्ड एंड
स्नोकर एसोसिएशन के सदर मुनव्वर शेख भी कोरोना का शिकार बन गए। लाहौर में कोरोना के फैलाव के 22 अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए भी वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। उधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में केसेस बढ़ने पर कोरोना टेस्ट करने वाली प्राइवेट लेबोरेटरीज को रेगुलेट करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। मुश्तबा मरीजों से फी टेस्ट 7,000 से 10,000 वसूल किए जा रहे हैं। काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना में पेश होने वाली महकमा सेहत की रिपोर्ट 92 न्यूज सामने ले आया। इसके मुताबिक रवा माह पंजाब में कोरोना वायरस खौफनाक हद तक फैलने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून तक पंजाब में मरीजों की तादाद 60,000 तक पहुंच जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की बैठक में मुल्की सियासी मुआशी और कोरोना की सूरत हाल पर मुशावरत की है। आइंदा 24 घंटों में अहम खिताब भी कर सकते हैं। इजलास के दौरान एक बार फिर शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के केसेस ज़ेरे बहस आए। कहा कि शरीफ फैमिली की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बड़ा ओपन है। जिस अंदाज में शहबाज शरीफ और दीगर भाग रहे हैं, साफ जाहिर होता है उनकी चोरी पकड़ी गई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की। आइंदा साल के वफाकी बजट से मुतालिक तजावीज़ और पार्लियामेंट्री सेशन पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक गाइडलाइंस फराहम की। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल करना होगा। वायरस से निमटने के लिए तमाम इक़दामात उठाए हैं। वेंटिलेटर्स की कमी को हंगामी बुनियादों पर दूर किया गया। सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइंदा 24 घंटों में कौम से हम खिताब भी कर सकते हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने मुलाकात की। सूबा बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, खुसूसन कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से इक़दामात और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबा बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सूबे की समाजी और मुआशी तरक्की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, झूठ के आदी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात आयद किए, हर जाने का दावा दायर किया तो अदालत के सामने नहीं कर रहे। इमरान खान ने नहीं बताया कि शहबाज शरीफ को पैनमा पर बात ना करने की कब किसके ज़रिए ऑफ़र की। इनसे सवाल पूछो तो कराए के तर्जुमान आगे से गाली देते हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ शुरू कर देते हैं, फजूल किस्म की आगे से गुफ्तगू करते हैं, ना सवाल का जवाब होता है। लेकिन क्योंकि कराए के तर्जुमान हैं, इसलिए किसी की इज्जत का उनको एहसास नहीं। कोविड-19 के बावजूद कल जिस तरह ख़तरे में डाला गया पुलिस को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को, शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा कानून और आइन के सामने पेश होती रही है, लेकिन ये कानून से भागे हुए भगोड़े, ये आदि झूठे सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानिया की एयरलाइन इंडस्ट्री को मजीद मुश्किलात से बचाने के लिए हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए 14 रोज़ करंतना की पॉलिसी में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। बरतानवी कारोबारी अफराद को इस मामले में नरमी दिए जाने का इम्कान है। कोरोना के फैलाव के मुताबिक हर मुल्क के बारे में अलग अलग पॉलिसी बनाई जाएगी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में कोरोना वायरस का जोर टूट रहा है तो दूसरी तरफ हुकूमत इसके दूसरे फेज से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। नेशनल हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में कोरोना वायरस का वार एक मरतबा फिर हो सकता है और फैलाव के खदशे के पेश नजर हुकूमत को बर वक्त इक़दामात उठाना होंगे। हुकूमती हदायत के मुताबिक 8 जून से त्यारों के अलावा ट्रेन और फेरी के जरिए मुल्क में दाखिल होने वालों को 14 रोज तक लाजमी करंतना में रहना होगा। लेकिन मुश्किलात का शिकार एयरलाइन इंडस्ट्री, होटल मालकान और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने भी हुकूमत को खबरदार किया है कि 14 रोज करंतना की शर्त ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन होगी। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया ऐसे ममालिक के शहरियों के लिए करंतना की शर्त खत्म कर सकता है जहाँ पर इन्फेक्शन की शरह कम है। इस मंसूबे को एयर ब्रिजेस का नाम दिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भी इस तजवीज़ के हक में हैं। पुलिस ऑफिसर, लॉरी ड्राइवर्स, सीजनल फार्म वर्कर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल करंटीना की शर्त से मुस्तस्ना होंगे। हुकूमती मनसूबे के मुताबिक मुसाफिरों को अपनी आमद के रहायशी एड्रेस के बारे में बताना होगा। रहायश न होने की सूरत में हुकूमत रहने का इंतजाम करेगी। 2 हफ्तों के दौरान कवायद की पाबंदी न करने वालों पर 1000 पाउंड जुर्माना किया जा सकेगा। हुकूमती हिकमत अमली के मुताबिक वस्ती लंदन का सिटी एयरपोर्ट कमर्शियल परवाजों के लिए जून के आखिर तक दोबारा खोल दिया जाएगा, जबकि एयरपोर्ट ने ऐलान किया है कि पहले डोमेस्टिक रूट्स को रीओपन किया जाएगा, उसके बाद अगले माह इंटरनेशनल परवाजें शुरू होंगी। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। बरतानिया की हाउसिंग इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी का शोबा इस वक्त बदहाली का शिकार है। आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी, इस हवाले से जानते ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अमान से। जी अमान, प्रॉपर्टी के कारोबार में मंदी का रुझान कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से जहाँ बरतानिया की मईशत जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है, तो जो हाउसिंग इंडस्ट्री है ये भी बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। लंदन समेत बरतानिया के अंदर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ घर भी बन रहे थे, अपार्टमेंट्स बन रहे थे, लेकिन जब से ये पैंडेमिक हुआ है ये थोड़ा सा स्लो हो गया है। और दूसरा, सेल परचेज में जो है वो बहुत हद तक जो है वो कमी वाक़या हुई है। लेकिन जो घरों की प्राइसेस थी, अभी तो इनिशियली कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार पाउंड पर घर जो है वो उसकी कीमत गिर चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि इसकी कीमतें जो है 10 से 15% के दरमियान जो है वो गिर सकती हैं। चूँकि अभी तक सेल परचेज़ नहीं हो रही, 55% से ज़ायद जो है वो सेल और परचेज़ के अंदर कमी आई है नए घरों के अंदर। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो कंट्री साइड पर मूव हो रहे हैं। कुछ लोग जो है वो जो रहते थे बरतानिया से छोड़कर जो है वो दूसरे मालिक में जा रहे हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ की हाउसिंग इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। और जो यहाँ पर हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो 2 माह हैं ये और बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे इस हवाले से। और अगर सेल परचेज़ का गिरने का तनासब यही रहा तो फिर आने वाले ये जो 2021 होगा इसके अंदर जो है वो घरों की कीमतें भी मज़ीद गिर सकती हैं। और बहुत सारे घर जो हैं वो लोग जो किराएदार हैं वो उसको खाली भी कर सकते हैं, चूँकि लोग जो है वो किराया भी अदा नहीं कर पा रहे। और दूसरी वजह से जो लोगों के नए घर ख़रीदने की सकत थी, क्योंकि इसके अंदर जो होता है कि अगर आपने मॉर्गेज लेनी है तो ज़ाहिर है आपके पास जो है वो जॉब होनी चाहिए, आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इस तरह के होने चाहिए कि आप मॉर्गेज पेश कर सकें। लेकिन पैंडेमिक की वजह से जब लोग जॉब्स भी नहीं कर रहे, कारोबार लोगों के मुतासर हैं, तो लोग जो है इस तरह की स्टेटमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे कि वो अपना जो नया घर है वो मॉर्गेज करा सकें। तो इसी वजह से ये इंडस्ट्री जो है कहा जा रहा है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर मज़ीद दबाव का शिकार रहेगी और घरों की कीमतें जो है वो पहले से जो है वो मज़ीद गिर सकती हैं। जी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर खान ने मुस्लिम लीग नून मिडलैंड्स आज़ाद कश्मीर के सदर राजा अमजद खान को कोऑर्डिनेटर बराए ओवरसीज़ कश्मीर तैनात कर दिया है। राजा अमजद खान की तैनाती पर ओवरसीज़ कश्मीरी कम्युनिटी खुशी का इजहार कर रही है। जिम्मेदारी मिलने पर राजा अमजद खान ने बर्मिंघम में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कम्युनिटी की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। जिस तरह आज मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने मेरा नोटिफिकेशन जारी किया है, मैं मशकूर हूँ राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब का और मुस्लिम लीग नून की तमाम आला क़यादत का। और मैं साथ अपनी कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हर दफ़ा जो है ये आवाज़ उठाई कि यहाँ से जो है वो जो वर्कर हैं उनको एडजस्ट किया जाए। तो यहाँ की जो कम्युनिटी है पाकिस्तान के बाद अगर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कहीं आबाद हैं तो वो बरतानिया मिडलैंड में हैं। तो इनके जितने मसाइल हैं इंशाल्लाह हम तरजीह बुनियादों पर इनको जो है वो हुकूमत के सामने लेकर जाएंगे और इनके हल के लिए जो है वो अपनी ज़रूर कोशिश करेंगे, अपनी बसात के मुताबिक काविशें जारी रखेंगे कि यहाँ के जितने हमारे लोग यहाँ ओवरसीज़ में बस रहे हैं इनके बहुत मसाइल है। ये यहाँ से जब जाते हैं तो वहाँ अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं इनको, तो इनके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता है और ये फेड अप होकर वापस आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब जो जिस तरह यहाँ का एक कमीशन भी बना है, कमिश्नर भी बना है, वहाँ पर अदालतें भी खुसूसी कायम हुई हैं ओवरसीज़ के लिए। तो ओवरसीज़ के जो यहाँ के मसाइल हैं उनके हल के लिए हुकूमत जो है वो तरजीह बुनियादों पर काम करेगी और हम इस पर हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ओवरसीज़ कम्युनिटी को खुसूसी तौर पर जो है वो डील किया जाए। लाहौर में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के घर पर नैब के छापे के खिलाफ ओवरसीज लीगी कारकुनों का रद्द-ए-अमल जारी है। उनका कहना है हुकूमत शरीफ खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त इस तरह की अफरा तफरी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पार्लिमान का इजलास होने जा रहा है, हिज़्ब इख्तिलाफ जो है
वो गाड़ी के दो पहियों की तरह एक पार्लिमानी जरूरत है कि वो गवर्नमेंट के काम पर, एक्शन पर, कोरोना की पॉलिसी पर नुकात उठाएं ताकि गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी बेहतर कर सके। इस तरह नैब के जरिए हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान को डराना, धमकाना जमहूरियत की नफी करता है। इमरान खान से हुकूमत तो चल नहीं रही, इनको सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मामला इसको हुकूमत नहीं करने दे रहा, और ये हुकूमत करने नहीं आया, ये ज़ाती गर्ज की बिना पे ये सारा कुछ कर रहा है, जो कि ना मुल्क के लिए अच्छा है ना आवाम के लिए अच्छा है। इस वक्त दुनिया कोरोना में मर रही है, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को, नवाज शरीफ साहब का अपने बच्चों के साथ घूमना, शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में आके कोरोना के लिए खिदमत करना इनको जेब नहीं दे रहा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत अच्छी तजवीज़ दी थी नैब को कि जो कि कोविड-19 पूरी दुनिया में इसमें मुब्तला है, उसमें पूरी दुनिया को खतरा है, पूरी दुनिया को थ्रेट है। उसने कहा था कि मैं 69 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरी एज है, फैक्टर है, मैं स्काइप टेलीफोन के जरिए आपके सवालात के जवाब दे सकता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने एक हल बताया था नैब को, और उसने उनको मानने से नैब ने इनकार किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बरतानिया आने वाले तमाम यूरोपीय बाशिंदों को खुशामदीद कहते हैं, वो आएँ और आकर अपना काम शुरू करें, अलबत्ता उन्हें हर सूरत करंतना करना होगा। बोरिस जॉनसन ने कोरोना के खिलाफ कार्रवाइयों, बेरोजगारी में इजाफे और आइंदा चंद दिनों में आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों पर भी बात की। आइए देखते हैं गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट पर। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की गुज़श्ता रोज़ लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूरोपीय बाशिंदों की बरतानिया वापसी, कोरोना से होने वाली हलाकतों, लॉकडाउन, इसके मईशत पर असरात और दीगर अहम मौज़ूआत पर ब्रीफिंग दी। बोरिस जॉनसन ने बताया कि अब तक 47,46,219 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 2,79,856 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया है, जबकि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक 39,728 अफराद हस्पतालों में हलाक हो चुके हैं। 279,856 people have tested positive, and that's an increase of 1,871 cases since yesterday. 7,485 people are in hospital with COVID-19 in the UK, down 16% from 8,921 this time last week. And sadly, of those who tested positive for coronavirus across all settings, 39,728 have now died. इटली से आने वाले वर्कर्स के हवाले से बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो इटली समेत यूरोप भर से आने वाले कारकुनों को खुशामदीद कहते हैं, वो आएं और अपना काम शुरू करें, अलबत्ता उन्हें 14 दिन करंतना में रहना होगा। What I'd say to our Italian friends, Italians who've been living and working in the UK who now want to come back, I say come back. Tutti benvenuti. Come back to London or to the UK, but you've got to quarantine. बड़ी तादाद में लोगों के बेरोजगार होने पर बात करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा, इस वबा के दौरान लोगों की बड़ी तादाद ने अपना रोजगार खोया है। ऐसे लोगों की मुआवनत के लिए हुकूमत इमदादी इक़दामात जारी रखेगी। I'm afraid, tragically, there will be many job losses, and that is just inevitable because of the effect of this virus on the economy and because of the shutdown that has taken place. And all I can say is that in dealing with that fallout from coronavirus, we will be as activist and as interventionist as we have been throughout the lockdown. There's no other country in the world, I think, has done as much, or few others that have done as much as the UK in terms of putting our arms around workers with the furlough scheme, looking after companies that have run into difficulties, helping in any way. बोरिस जॉनसन ने लोगों पर वाज़ेह किया कि लॉकडाउन में मरहलावार नरमी के बावजूद हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल दरामद करना लाजिम है। उन्होंने कहा, घरों से बाहर लोगों के इज्तिमात पर अब भी पाबंदी है। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, लंदन। कोरोना को शिकस्त देने वाले बरतानवी शहजादा चार्ल्स पुरअज़्म हैं, कहते हैं बीमारी की नौयत संगीन ना होने की वजह से खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। शहजादा चार्ल्स ने एक इंटरव्यू के दौरान कोरोना वायरस के हवाले से अपने तजुर्बात से आगाह किया। उनका कहना था कि वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं क्योंकि उनकी बीमारी संगीन नहीं हुई। ताहम उन अफराद के लिए वो अफसरदा है जो कोरोना से लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी की बासी हार गए। ये लोग आखिरी लम्हात में अपने प्यारों से भी ना मिल सके, जो इस बीमारी का इंतहाई खौफनाक रुख है। शहजादा चार्ल्स का मजीद कहना था कि लोगों को अब एहसास हो गया है कि उन्हें फितरत में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के साबिक सदर राजा मोहम्मद सरफराज ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से UAE में मुकीम पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ताहम पाकिस्तानी सिफारत खाना और काउंसलेट उनके मसाइल के हल के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी ताजिर और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के साबिक सदर राजा मोहम्मद सरफराज ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ताहम पाकिस्तान का सफारत खाना उनकी मदद के लिए कोशां है। इधर लोगों को परेशानी बहुत है, राशन का पीछे बहुत मसला बना रहा, लेकिन शारजा सोशल सेंटर ये और भी कम्युनिटी के बहुत जो आखिर हजरात थे उन्होंने अपनी जगह हेल्प की, लेकिन मैंने देखा हूँ कौंसलेट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। एक वो मैंने जब भी देखा हमने इधर से लिस्ट दी, उन्होंने घर घर राशन पहुंचाया और फिर हमने अभी इस कल तक भी मैंने एक और फैमिली थी उनको बताया कौंसलर साहब को कि उनके पास राशन नहीं है, उन्होंने आज अभी राशन उनको पहुंचा दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा मुखय्यर हजरात कौंसलेट और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानियों की मदद की जा सके। हम एक ब्रिज की तरह काम करते हैं कौंसलेट के और कम्युनिटी के दरमियान, हम एक ब्रिज है। हमने उन कौंसलेट को बताया, उन्होंने उसी टाइम सारे काम छोड़ कर उस आदमी को पठान था पेशावर का भेजा। एक आदमी किडनी का मरीज़ था, अभी 2 दिन पहले बताया भाई जी ये बीमार है, इसको ये प्रॉब्लम है ना, जो बीमार है उनको वो सबसे पहले भेज रहे हैं। राजा सरफराज ने कहा UAE में फंसे पाकिस्तानियों की शिकायत जायज़ हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौंसलेट और कौंसल जनरल अहमद अमजद अली भी मजबूर हैं जो वसाइल और तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो शिकायतें लोगों की जायज़ हैं, क्योंकि अभी असल क्या है, अभी वो फ्लैट इतनी है नहीं। अभी अगर सब आदमी बोलेंगे हम पहले चले जाएँ, हम पहले जाएँ, लेकिन वो एक मेरिट्स पर भेज रहे हैं। कई जो बीमार हैं उनको भेज रहे हैं और जो कैंसल होकर बैठे हुए हैं उनको भेज रहे हैं, जो कंपनियों से फारिग होकर बैठे हुए हैं उनको भेज रहे हैं, बीमारों को भेज रहे हैं। इन लोगों को वो दे रहे ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। आखिर में राजा सरफराज ने UAE में फंसे पाकिस्तानियों को पैगाम दिया कि वो सब्र से काम लें, उनकी मुश्किलात हल की जा रही हैं। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। सऊदी अरब में खातीन को पब्लिक प्रोसिक्यूशन में तैनात करने का शाही फरमान जारी। 53 खातीन को लेफ्टिनेंट के ओहदे पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तौर पर तैनात किया गया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तर्जुमान के मुताबिक ये खातीन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पब्लिक प्रोसिक्यूशन की शाखों में अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगी और ख़वातीन से ताल्लुक़ रखने वाले तनाज़ात और मुक़दमात में तहकीकात करेंगी। तर्जुमान के मुताबिक ख़वातीन की तक़र्रुरी का फ़ैसला सऊदी विजन 2030 के अहम नस्बुलैन की तकमील के लिए हुआ है। तर्जुमान ने तवज्जो दिलाई है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन की नई रुकन ख़वातीन की तक़र्रुरी से कबल तरबियती कोर्स भी कराए जाएंगे। उन्हें नज़रियाती पब्लिक प्रोसिक्यूशन के फ़राइज़ और अदालती ज़िम्मेदारियों की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अमरीकी रियासत मिनियापोलिस के सफ़ेद फार्म अफसर पर स्याह फार्म शहरी की हलाकत के मुकदमे में 2nd डिग्री या दूसरे दर्जे के कत्ल की फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि उनके 3 साथियों को भी फ़र्द जुर्म का सामना है। उधर अमरीका में फूटने वाले फसादात का सिलसिला भी न थम सका। एहतजाज का दायरा कार अमरीका से निकल कर दुनिया भर में फैल गया है। लूट मार, झड़पों और गिरफ्तारियों का सिलसिला ताहाल जारी है। स्याह फार्म अमरीकी की सफ़ेद फार्म अमरीकी पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत ने अमरीका को हिला कर रख दिया। अमरीका के 40 से ज़ायद शहरों में कर्फ्यू और दर्जन से ज़ायद शहरों में नेशनल गार्ड्स तैनात करना भी बेसूद हो गया। पुलिस अफसर ने जॉर्ज फ्लाइड नामी एक स्याह फार्म अमरीकी शहरी की गर्दन को घुटने से दबाए रखा, जिसके बाद वो दम तोड़ गया। जॉर्ज फ्लाइड पर इल्जाम था कि उसने जाली नोट से सिगरेट खरीदने की कोशिश की। 25 मई को रोनमा होने वाले इस वाक़े के बाद अमरीका की मुतादिद रियासतों में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके दौरान तशद्दुद और लूट मार के मुतादिद वाक़यात भी रूनुमा हुए। पेंटागन के सरबराह ने मुल्क में जारी मुजाहिरे रोकने के लिए फौजों के इस्तेमाल के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख्याल को मुस्तरद कर दिया, जबकि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपना रद्द अमल देते हुए एक बयान में कहा कि जॉर्ज फ्लाइड की मौत ने अमरीका में मुनज़्ज़म नस्ली इम्तियाज को नुमायां किया है।
उधर यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई, जबकि एहतजाज करने वालों ने अमरीकी सिफारतखाने के बाहर आग भी लगा दी। लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी मुजाहिरीन ने नस्ल परस्ती के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहरे में हजारों अफराद ने शिरकत की और शदीद नारेबाजी की। दुनिया भर में जारी एहतजाजी मुजाहरों की वजह से अमरीकी तज्जियाकारों का कहना है कि इस वाक़े ने अमरीका की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है और सदर ट्रंप इस मसले को हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस फट पड़े। अमरीकी सदर और फौज को मौजूदा बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप वाहिद सदर हैं जो कौम को मुत्तहिद नहीं कर रहा। मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए फ़ौज के इस्तेमाल की भी मजम्मत की। जेम्स मैटिस 2018 में ट्रंप की पॉलिसी से इख्तलाफात पर मुस्ताफ़ी हुए थे। अमेरिका में सियाह फाम शहरी का कत्ल, मेगन मार्कल भी चुप न रही। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर इज़हार अफसोस करते हुए नस्ल परस्ती की शदीद मजम्मत कर दी। साबिक बरतानवी शहजादा हैरी की अहलिया मेगन मार्कल ने जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस गर्दी से हलाकत की शदीद मजम्मत की। अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि हमें अब ऐसी दुनिया में बढ़ना होगा जहां अब भी नस्ल परस्त सोच मौजूद है। फ्लॉयड की हलाकत एक नया आगाज़ बन चुकी है। कर्फ्यू के बावजूद अवाम ने इंसाफ का मुतालबा तर्क नहीं किया। मेगन मार्कल का कहना था कि जॉर्ज फ्लॉयड और तेमर राइस की जाने रायगा नहीं जाएंगी। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ मिला जुला रुझान रहा। मार्केट 282 पॉइंट्स की कमी के साथ 34,119 की सतह पर बंद हुई। दूसरी जानिब डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। तफसीलात के लिए शिराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 282 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट 34,119 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 322 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 200 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी जबकि 95 के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 34,410 जबकि कम तरीन सतह 34,090 रही। करेंसी मार्केट में डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता हो गया। आज इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 66 पैसे कमी हो गई, जिसके बाद डॉलर 164 रुपए 32 पैसे से कम होकर 163 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। इसी तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर 80 पैसे सस्ता हो गया और 164 रुपए 50 पैसे से कम होकर 163 रुपए 70 पैसे पर आ गया। सराफा मार्केट में सोने की कीमत में इस्तेहकाम देखा गया। फी तोला सोना 97,700 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 83,762 रुपए पर ही मुस्तहकम रही। दूसरी जानिब ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आ गई। स्टेट बैंक के ज़खायर 1 अरब 71 करोड़ डॉलर की कमी से 10 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गए, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 6 अरब 55 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्जों की अदायगी के सबब ज़राए मुबादला के ज़खायर में कमी हुई है। शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की बजाय न्यूजीलैंड में कराया जा सकता है। इवेंट की मनसूखी नहीं होनी चाहिए। साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेन जोन्स की तजवीज़ ने नई बहस को जन्म दे दिया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। ICC T20 वर्ल्ड कप को मुतबादिल वेन्यू पर मुंतकिल करने की आवाजें बुलंद होने लगीं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेन जोन्स ने इवेंट न्यूजीलैंड में करवाने का मशवरा दे दिया। डेन जोन्स का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के लिए टीम्स को करंतना में रखना मुश्किल होगा। इन हालात में ऑस्ट्रेलिया के लिए इवेंट की मेजबानी करना मुश्किल होगा। डेन जोन्स ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, न्यूजीलैंड हुकूमत की जानिब से आइंदा हफ्ते समाजी फासलों की पाबंदी खत्म किए जाने का इम्कान है। ऐसे में इवेंट को न्यूजीलैंड मुंतकिल करना बेहतरीन ऑप्शन होगा।
T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद का हतमी फैसला 10 जून को ICC की बोर्ड्स मीटिंग में मुतवक्के है। इवेंट रवां साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल्ड है। ऑस्ट्रेलियन हुक्काम इवेंट के इनेकाद के हवाले से तजब्जुब का शिकार हैं, जबकि भारत इवेंट मनसूख करवा के उसकी जगह IPL के इनेकाद के लिए साजिशें कर रहा है। तुर्की का इलाका कैपाडोकिया अपनी तारीख और सकाफती वर्से की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पहाड़ के अंदर मौजूद गिरजाघर, गारों में मौजूद कदीम तरीन रहायशगाहें देखकर दुनिया भर से आने वाले सयाह हैरान रह गए। इस तारीखी मकामात के हवाले से देखिए नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। तुर्की का ये तारीखी और मुनफरद शहर वस्ती अनातोलिया में मौजूद है और इसकी बाकियात कई सूबों तक फैली हुई हैं। इस इलाके की वजह शोहरत कदीम गारें और इनमें मौजूद गिरजाघर हैं। ये गिरजाघर पहाड़ों को काट कर बनाए गए हैं। बाहर से आम गार दिखाई देती है, लेकिन जब इसके अंदर दाखिल हूँ तो दीवारों पर बने नक्शो नगार और तस्वीर देख कर अकल दंग रह जाती है। दुनिया भर से आने वाले सियाह इन पहाड़ों के अंदर मौजूद ये चर्च और रहायश गाहें देख कर हैरान रह जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये अनोखा शहर 6वीं ईस्वी में बसाया गया। बरंजी दौर में हेटी सल्तनत के तहत इस शहर का नाम हाटी रखा गया था। सिकंदर आजम ने भी अपने एक अस्करी कमांडर के जरिए इस इलाके पर हुक्मरानी की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। यहाँ फारस का एक अमीर हुक्मरानी करता रहा। इन कदीम पहाड़ों में गोरीमे ओपन एयर म्यूजियम भी मौजूद है, जहां तारीखी नवादरात और दीगर अशिया सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। खास तौर पर गिरजा घर की छत और दीवारों पर बनी तस्वीर और दीगर नमूने देखकर सियाह हैरान रह जाते हैं। मुनफरद तर्ज तामीर और तारीखी हैसियत की वजह से इन पहाड़ियों को अक़वाम मुत्तहिदा के सकाफती विरसे में भी शामिल किया गया है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी सियाह कैपाडोकिया पहुँचते हैं। 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए इस मौके पर पाकिस्तानी सियाहों ने गारों के अंदर मौजूद चर्चिज को हैरत अंगेज करार दिया। मैं आज तुर्की शहर कैपाडोकिया में आया हूँ। यहाँ बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका। मैं लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। हम बहुत खूबसूरती है इधर। हम इधर आए हैं। आज 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। कैपाडोकिया आकर सियाह एक नई दुनिया में गुम हो जाते हैं। यहाँ का चप्पा चप्पा माजी की शान शौकत और अजमत को बयान करता दिखाई देता है। इस इलाके की दूसरी वजह शोहरत, यहाँ हॉट एयर बैलून पर सवार होकर सियाहत की सहूलत है। हर साल सैकड़ों सियाह यहाँ आते हैं और हॉट एयर बैलून के जरिए बुलंदी से इस कदीम इलाके की सैर करते हैं। जी मैं तुर्की के नेव शहर कैपाडोकिया में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं। ये तुर्की की सकाफत का हिस्सा है। जो भी टूरिस्ट यहाँ आए और कैपाडोकिया का विजिट ना करे वो कहते हैं सेहत का फायदा नहीं। आती बात 92 न्यूज़ तुर्की। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।